थी, मैं जितना डट के खड़ी होती थी ना, उससे बड़ा कुछ आके मुझे फिर से गिरा देता था. लिटरली ट्राई टू एंड माई लाइफ. मुझे लगता था कि दिस इज द एंड, नाउ आई जस्ट डू समथिंग, आई जस्ट एंड माई लाइफ. Okay, so it's finally 31st of December 2021. साल का आखिरी दिन है और I just wanted to wish you guys a very happy new year 2022. So I was just writing down my journal for the last day of 2021 और I just started going through the pages. Like it is always a good idea to see from where you have started and how much you have achieved. So I was just going through that diary and then I realized I should share this story of mine because my life story is worth sharing. That is how I feel. 2015 से लेकर अभी तक I have been through many phases और हर एक फेज ने मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाया है which helped me to grow as an individual. So that was the reason I decided to make this video. And also I'm just going to have my wine for 31st night. And I don't have wine glass, तो मैं विस्की के ग्लास में पी रही हूँ. I always write it down in my to do list कि मुझे wine glasses खरीदनी है, but I always forget. So that is how I'm managing. It's chilled and it's good. Okay, so I just forgot where I was. तो yeah, मैं बता रही थी कि when I was 15 years old to till date, शायद मैंने इससे पहले 2015 बोला, मुझे शुरू करने से पहले ही चढ़ गई आई गेस. एनीवेज, सो व्हेन आई वाज 15 years old, तब से लेके अभी तक आई हैव बीन थ्रू many phases. Like I have been through worst phases of my life. जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं, I have literally lived those days. मैंने उन सब सिचुएशन से गुजरी हूँ. So that is the reason why I decided to make this video. I really don't know if it will be helpful for someone, but I know one thing, that in future if I ever going through something, like if ever I'm depressed or I'm in a bad situation, I'm in such situation where I'm just feeling that I'm gonna give up, I'm gonna go back and watch this video, and I'm pretty sure that this video is going to help me a lot to stay motivated. क्योंकि मुझे पता है what I have been through, that was not easy. और अगर मैं वो सब से निकल के यहाँ तक आ सकती हूँ, तो मुझे नहीं पता आगे इससे बुरी situations क्या आएंगी जिसको मैं ना फेस कर पाऊँ. Yeah, that is one thing why I'm making this video. I'll start with 2015 का इंसिडेंट. So 2015 से 2020 तक का जो टाइम फ्रेम था ना, ये 5 साल मेरे लाइफ के सबसे बुरे दिन, बट आई वुड से अ लर्निंग फेज ऑफ माई लाइफ. बिकॉज इस टाइम फ्रेम ने है ना मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ. I never knew that I'm this strong, and I never knew कि मैं इस तरह की situation से बाहर भी आ सकती हूँ. So in 2015, 2014 में actually something really tragic happened, and I was literally shattered. I was broken, and I was just trying to recover and put all my broken pieces together. I was not in the good state of mind. I really don't know, but it was a really bad situation. My mental state was all over the place, and I didn't know that I'll ever come out of the situation. So in 2015, I would say I was still recovering, I was healing, but yes, I was at a better place. We say कि time heals everything. So ऐसा ही कुछ था. टाइम सब कुछ हील कर देता है, बस आपको थोड़ा सा वक्त को देना होता है to make things perfect. So that is what the situation was. And in 2015, I was still recovering, I was still healing, and I decided to start my business. Okay, so actually मैं ऐसा सोच ही रही थी. I was just thinking कि I'll start some business. It was not that I was immediately going to start that business. I had this idea in my mind because when I started working when I was only 18, 19, yeah, 19
और तब से लेके मैं जॉब करती आ रही थी। क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत दूर था तो मुझे हर दिन ट्रैवल करना पड़ता था। बहुत बार ऐसा हुआ कि एक्टिवा से आते जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ बिकॉज वो हाईवे का रास्ता था। सो माई हेल्थ वॉज नॉट दैट ग्रेट एंड ऑल्सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन। बहुत सारे स्ट्रेस से मैं गुजर रही थी बिकॉज बीइंग अ सिंगल मॉम इज़ नॉट ईजी व्हेन you are the only one who have the responsibility of your child and you are raising her single handedly. It is not at all easy. So I was in stress but मैं कभी दिखाती नहीं थी. It was like I'm that happy go lucky girl, मुझे कोई टेंशन नहीं है. But deep down I knew that I have a responsibility. और मैं खुद बच्ची थी यार. It was like I was just 19. 18 19 20 की उम्र में ना, आजकल तो सब ऐसे ही होते हैं कि मॉम डैड के लाडले होते हैं एंड दे जस्ट डोंट डू एनीथिंग. बहुत रेयर होता है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कुछ करते हैं. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज working really hard because I had a responsibility of my daughter and also I started studying. क्योंकि मेरी शादी की वजह से मेरी जो स्टडीज़ थी वो रोक दी गई थी. I had just completed my 12th और उसके बाद it was a challenge to you know arrange money for your own studies and then raising your kid because उस उम्र में आप जॉब कर रहे हो, बच्ची संभाल रहे हो, पढ़ रहे हो. इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट. लाइक अभी जब मैं इस सिचुएशन में हूँ, आई एम एट अ बेटर प्लेस, तो मैं थोड़ा सा बहुत ही ईजिली बता रही हूँ बट इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट. मुझे ही पता है कि मैंने क्या क्या करा है. मैंने दूसरों के कपड़े तक स्टिच किए हैं बिकॉज मुझे बहुत पहले शौक था स्टिचिंग वगैरह का. बिकॉज आई हैड दिस ड्रीम कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आई जस्ट डू फैशन डिज़ाइनिंग एंड आई विल बी अ फैशन डिज़ाइनर. दैट इज़ वाई आई हैड लर्न स्टिचिंग. तो उस बुरे सिचुएशन में, उस बुरे टाइम में दैट वॉज अ स्किल जो कि मुझे जिसने बहुत ही हेल्प करा. सो आई वॉज लिटरली स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर अदर्स एंड आई वॉज अर्निंग आउट ऑफ दैट. आई वॉज डूइंग ट्यूशन्स और वो जो भी पैसे मैं इकट्ठा करती थी उससे मैं अपने आप को चलाती थी, अपनी बच्ची को चलाती थी, अपनी स्टडीज़ एंड ऑल. सो दैट इज़ लाइक अ डिफरेंट स्टोरी. उसको मैं इसमें मर्ज नहीं करूँगी, मे बी सम टाइम लेटर. सो या आई हैव बीन थ्रू अ लॉट एंड मैंने बहुत सालों तक जॉब करा है. सो बिकॉज इतने साल जॉब करने के बाद 2-3 बार मेरे एक्सीडेंट्स हुए थे और उसकी वजह से मेरी हेल्थ कंडीशन, मुझे लोअर बैक की प्रॉब्लम हो गई थी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे थे. सो माई पेरेंट्स दे सजेस्टेड मी कि यू शुड ओपन अ बिजनेस. एक तुम्हें स्टिचिंग वगैरह आती है तो यू जस्ट ओपन अ बुटीक एंड तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है. सो या दैट इज़ व्हाट दे सेड एंड इनफैक्ट बैक ऑफ द माइंड मेरे भी चल रहा था कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं. और बट उस टाइम पे आई वॉज नॉट रेडी फाइनेंशियली. क्योंकि मैं जो भी अर्न कर रही थी दैट आई यूज टू स्पेंड ऑन माई ओन स्टडीज़, ऑन माई डॉटर. और यू नीड मनी टू सर्वाइव. और मैं जो भी अर्न कर रही थी वो मेरे सर्वाइवल पे ही खर्च हो जा रहे थे. तो आई लिटरली हैड नो सेविंग्स. तो मैंने ये सोचा था कि कुछ और साल में काम करूँगी, लाइक 1-2 साल, एंड देन आई विल सेव मनी एंड आई विल स्टार्ट माई बिजनेस. अभी नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट हैव सेविंग्स. बट देन ऐसे ही चल रहा था. वी यूज टू हैव डिस्कशन ऑल द टाइम कि तुम्हें कर लेना चाहिए. हाँ, तो तुम्हें कर लेना चाहिए बिजनेस. और उसी टाइम में इन 2015 मेरे घर के पास है ना एक देयर वाज अ शॉप जो कि रेंट पे दे रहे थे. एंड all my family members including my parents, my brother and everyone, they just literally forced me to open that business. कि जगह मिल गई है, now you should open it because इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. मैंने थोड़ी सी ना नुक्कड़ की कि नहीं अभी नहीं आई डोंट हैव मनी. तो दिस सेड कि ओके हम किसी से उधार पे लेके कर लेंगे एंड देन हम उसको रीपे कर देंगे. सो बिकॉज दे इंसिस्टेड मी एंड मैं हमेशा अपने दिमाग से काम करती हूँ. आई थिंक अ लॉट. आई जस्ट सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोचने के बाद ही मैं कोई डिसीजन लेती हूँ. बट आई रियली डोंट नो व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड ड्यूरिंग दैट टाइम. मैंने इतना सोचा नहीं उसके बारे में. एंड बिकॉज दे फोर्स मी, दे लिटरली दे इंसिस्टेड मी सो मच कि आई सेड ओके वी विल डू दैट. और या इट हैपेंड. तो वी जस्ट टुक लोन. और जो भी मेरी थोड़ी
बच्ची कुछ इसी सेविंग्स थी, वो सब हमने लगा के वी स्टार्टेड द बिजनेस. Yeah, it just started and I was really happy. I'll just put some pictures of my store if I'll find, क्योंकि you know मैंने सब डिलीट कर दिया था, but still if I'll find I'll um, put some picture. You can also search on Google for Yashika fashion store. So Yashika is my daughter's name. I worked really hard for that boutique. जब मैंने शुरू किया था I went to Mumbai to pick the collection. Like it was going to be the first collection. So मैंने मुंबई से मैं खुद जाके शॉपिंग करके आई थी, and then I also went to Delhi. और या सारी शॉपिंग मैंने खुद जाके करी थी लिटरली. और बिकॉज शॉप को ओपन होने में बहुत कम टाइम था, तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने 10 से 11 बड़े बड़े बैग्स थे, उसको मैं अकेली ट्रेन से लेके आई थी. यस, इट वाज सो डिफ़िकल्ट. और उसके बाद समहाउ आई स्टार्टेड द बुटीक एंड विद इन 6 मंथ इट स्टार्टेड डूइंग रियली रियली वेल. बहुत ही बिजनेस अच्छा हो रहा था, लोग बहुत ही पसंद कर रहे थे कलेक्शंस को, और I literally felt that my hard work is paying off. क्योंकि बुटीक का काफ़ी अच्छा नाम भी हो गया था. Not from the same locality but थोड़ी दूर के एरिया से भी लोग आते थे, which was really a great thing. So yeah, that is how we started. I was continuing my job as well. क्योंकि मैंने जो लोन लिया था ना, तो अगर इनिशियली मैंने सोचा कि अगर इनिशियली जो भी बिजनेस हो रहा है, अगर मैं प्रॉफिट के पैसे से मैं लोन क्लियर कर दूंगी, एंड मेरा और जो मेरी डॉटर का खर्चा है दैट आई डू विथ माई सैलरी. माई पेरेंट्स दे यूज टू सपोर्ट मी विद दैट. My hair doesn't look good. मैंने अभी भी शैम्पू किया है and it's just so messy. So my parents they were really helping me. My brother and my sister-in-law, they were all there to help me. So they were handling the boutique in the morning hour, and जब मैं ऑफिस से वापस आती थी तो मैं straight away वहीं जाती थी, and I used to be there for like rest of the time, and it was really getting hectic for me क्योंकि पूरा दिन मैं ऑफिस करती थी और शाम को आके बुटीक संभालती थी. Then I used to come back home 10-10:30 बजे, and then I just मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कुछ और करूं, because yeah, it was really tiring. So that is how it was going on. एक साल तो बहुत अच्छे से बीत गया, and I was like okay, अभी सब अच्छा है, everything is good, things are going really well. तो प्रॉब्लम कहाँ हुई ना कि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा था तो आई हैड समथिंग इन माइंड कि मैं कुछ ही चीज़ें लाइक देर आर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच आई वांटेड टू कीप. सो आई जस्ट डिडंट वांट टू मेक इट अ मेस कि मैं ये भी थोड़ा रख लूँ, वो भी थोड़ा रख लूँ, ये भी थोड़ा रख लूँ. सो आई नेवर वांटेड टू डू दैट. मुझे था कि मैं कुछ ऐसे स्पेशल कुछ ही आइटम रखूँ, और बस उसी को ही मैं मतलब उसी में ही मैं वैरायटी रखूँ, और उसी में ही मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, अच्छे अच्छे कलेक्शंस लेके आऊँ. सो दैट इज़ हाउ आई वांटेड टू रन माय बिजनेस. बट देन जहाँ मैं जॉब कर रही थी, सो आई हैड टू ट्रैवल लाइक फॉर फ्यू मंथ्स. मुझे आउट ऑफ स्टेशन रहना था बिकॉज ऑफ सम प्रोजेक्ट. सॉरी फॉर दैट. सो मुझे कुछ महीने आउट ऑफ स्टेशन रहना था बिकॉज ऑफ माई प्रोजेक्ट. मैं प्रोजेक्ट के लिए बाहर चली गई. आई वॉज इन राजस्थान, एंड माई डैड, my brother and my sister-in-law, they were just handling my business. So it was going good. But problem कहाँ हो गई कि जब भी कोई कस्टमर आता था ना, तो they used to ask for something कि ये है, वो है, ये है, नहीं है. और जब कोई ऐसा आइटम होता था जो कि हमारे पास नहीं होता था, तो my dad and my brother, they used to tell me कि okay, ये आइटम नहीं है, and the customer are asking for this and we need to keep this. तो मुझे लग रहा था कि वी वोंट क्रिएट अ मेस कि बहुत सारे आइटम वैरायटी स्टोर टाइप का हमको नहीं बनाना है. सो हम कुछ ही प्रोडक्ट्स रख रहे हैं ना, तो वी विल कीप दैट ओनली. कैसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक रख रहे हैं ना, तो आपका उसमें डेड स्टॉक बहुत निकलता है. तो अगर आप जितनी वैरायटी मेंटेन करोगे उतना ज़्यादा निकलेगा. और अगर क्योंकि मैंने जो बिज़नेस शुरू किया है, इट वॉज लाइक सारे के सारे पैसे मैंने लोन से लगाए थे, तो आई जस्ट डिडंट वांट कि मैं कुछ ऐसा आइटम रखूँ जिसमें कि डेड स्टॉक ज़्यादा निकले और मुझे बाद में उसको बहुत कम प्राइस में ऐसे ही दे देना पड़े. सो आई वॉज नॉट हैप्पी विद द आइडिया. दे नेवर लिसन टू मी एंड दे केप्ट ऑन एडिंग स्टॉक. ऐसी वैरायटी बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा वैरायटी हो गई थी कि मेंटेन करना मुश्किल हो गया था. लाइक अगर आप एक वैरायटी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपने कुर्ती रखी है, तो आप 10 कुर्ती लेके आते हो, तो उसमें से 4-5 बिक जाएंगी और 5 आपका डेड स्टॉक रह गया. तो वो जो 5 आपका डेड स्टॉक रह गया, बिकॉज ये एक छोटा सा एरिया है, तो वहाँ के लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उस आइटम को, तो दिल नेवर बाय दैट. ओके, दिल आस्क फॉर सम न्यू स्टॉक.
और जब तक फिर आप उसमें नए स्टॉक नहीं डालते हो वही प्रोडक्ट फिर से बिक जाएगा, बट यू हैव टू ऐड न्यू स्टॉक। और ऐसा करते करते है ना वो स्टॉक बढ़ती जा रहा था और इतनी सारी वैरायटी हो गई थी कि हर वैरायटी में स्टॉक ऐड करना पड़ता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमेशा जो मेरे फाइनेंसेस थे मतलब हमेशा कम पड़ते थे, और उसके लिए और ज़्यादा लोन लेना पड़ता था, उसको चुकाने के लिए और ज़्यादा लोन लेना पड़ता था। एंड लाइक आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं इतना मॉनिटर नहीं कर पा रही थी। आई वॉज लाइक ठीक है चल रहा है चला रहा है। और जब मैं आई तो सिचुएशन लाइक इट टुक मी रियली लॉन्ग मेरा प्रोजेक्ट खत्म होने के लिए। यू कैन से लाइक 1 ईयर तक आई वॉज ट्रैवलिंग, तो इट वॉज रियली लॉन्ग ड्यूरेशन। और जब मैं आई तब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इट वॉज़ लाइक बहुत सारा डेड स्टॉक हो गया था, और बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं जहाँ से हम स्टॉक लेके आते थे उनको पेमेंट करना था। अकाउंट में मुझे कुछ बैलेंस दिख नहीं रहा था। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, हो क्या रहा है, मतलब ये इतना लॉस कैसे हो गया। एंड then I just started going through all the sale and purchase stuffs, and I saw कि इतनी ज़्यादा वैरायटी उन्होंने बना रखी है कि उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। और हर वैरायटी में आप इतना आपको हमेशा स्टॉक ऐड ऑन करते रहना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डेड स्टॉक निकलता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। अगर वहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता कस्टमर का, अलग अलग एरिया से लोग आते, तो प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज इट वॉज वेरी स्मॉल लोकेलिटी और ज़्यादातर लोकल्स आते हैं। तो it is difficult to sell like old stuffs, so that is how it was going on। and मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बट मैं हारी नहीं थी। आई वॉज लिटिल स्ट्रेस्ड, बट मुझे लगता था कि आई मैनेज। और जब मैं आई तो मैं बिल्कुल आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑनलाइन। मैंने जो भी स्टॉक थे तो आई थॉट कि ठीक है जो भी स्टॉक है इसको मैं ऑनलाइन बेच दूंगी, और आई स्टार्टेड सेलिंग इट ऑनलाइन। और थोड़ा कुछ स्टार्ट हुआ भी था, बट देन दिस डीमोनेटाइजेशन हैपेंड इन 2016, और उसके बाद बिजनेस इतनी बुरी तरीके से गिर गया बिकॉज ऑफ दैट। मैं आपको बता नहीं सकती, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि उस टाइम में पैसे मिलते नहीं थे। ओके हर कोई 2-2 हज़ार करके रुपए उनको बैंक से वो कन्वर्ट करवाते थे। एंड इट वॉज जस्ट लाइक कि आपके बेसिक सर्वाइवल के लिए पैसे खर्च करने होते थे। तो नो वन वॉज इंटरेस्टेड टू गो एंड बाई स्टफ्स। ओके सो दैट इज़ हाउ इट इम्पैक्टेड माई बिजनेस। और इतना बुरी तरीके से सेल डाउन हुआ था कि ऑलरेडी आई वॉज इन माइनस, एंड आई वॉज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। उसके बाद जो ये डिमोनेटाइजेशन वाला चीज़ हुआ ना, तो संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आई लिटरली फेल्ट कि अब नाउ व्हाट आई डू। और जैसे तैसे वो जो 4-5 महीने का टाइम फ्रेम था ना, वो इतना डिफ़िकल्ट था, और उस सिचुएशन में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आई वॉज लिटरली लाइक एवरी नाइट आई यूज टू क्राई कि what the hell has happened to me, like why this is happening to me, what wrong I have done to anyone, like why. So somehow I started gathering up all my courage, and मैंने सोचा कि I'll do something about it, and I'm not going to sit and cry. I'll definitely do something about it. और उसके बाद I decided to आई वॉज थिंकिंग सो मैनी थिंग्स, और उसी बीच में मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी, बिकॉज आई थॉट कि आई जस्ट गिव माई फुल टाइम टू माई बिजनेस एंड आई डू एवरीथिंग। 2-3 महीने की मेहनत के बाद थोड़ा बहुत सेल पिक लेने लगा, और थोड़ा बहुत सेल इम्प्रूव हुआ था। और उसी वक्त हमारे एरिया में जो जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं दैट इज़ रेसिडेंशियल एरिया, तो वहीं पे छोटे छोटे शॉप्स बने हुए हैं। व्हाट हैपेंड कि वहाँ पर जो वहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने कहा कि हम रेसिडेंशियल एरिया में हम शॉप अलाउ नहीं करेंगे। सो दे जस्ट गिव अस नोटिस टू शट आवर शॉप डाउन। और इट वाज लाइक वो बोलते हैं ना आपके ऊपर किसी ने बम फेंक दिया हो। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ न्यूज़ जो बोलते हैं ना कि आपके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाना। सो दिस वॉज समथिंग लाइक दैट। और आई लिटरली फेल्ट कि व्हाट आई डू नाउ, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर शॉप लेती हूँ तो उसका रेंट बहुत ही ज़्यादा था, विच एट दैट पॉइंट आई कुडंट अफोर्ड। और अगर मैं शॉप क्लोज कर देती हूँ तो देर आर लाइक मोर देन 10-12 लाख के स्टॉक है मेरे पास, मैं उनको क्या करूँगी। इट वॉज
आई डोंट नो, मैं इन सब चीज़ों को झेल के मैं इतनी इमोशनलेस हो गई हूँ कि शायद मैं आपको सही से इस वीडियो में बता भी नहीं पा रही हूँ कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। इट वाज लाइक अ नाइटमेयर। और हर रात मुझे नींद नहीं आती थी, मैं 2-3 बजे तक सोचती रहती थी, रोती रहती थी, और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी बिकॉज माई पेरेंट्स दे जस्ट गेट अपसेट, दे जस्ट गेट यू नो, बेकार का उनको टेंशन होगा। माई डॉटर शी वॉज वेरी यंग दैट टाइम, शी वॉज वेरी स्मॉल, तो मैं उसके सामने भी मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। आई हैड टू बी हैप्पी। सो ये जो शॉप बंद करने वाला झमेला है ना, ये पूरे 1 साल तक चला। इट वॉज देन 2017 का एंड, और बहुत टाइम शॉप बंद करना पड़ता था, और इट वॉज लिटरली अफेक्टिंग द सेल्स एंड एवरीथिंग। तब तक आई वॉज लिटरली फिनिश्ड। मेरे ऊपर कुछ नहीं तो 22 लैक्स का लोन हो चुका था, और उस 22 लैक्स का लोन मैंने ऑलरेडी लाइक 2015 से लेके 2017 के लास्ट या 2018 के फर्स्ट मंथ में व्हेन आई काउंटेड, तो इट वाज लाइक 22 लैक्स के लिए मैंने ऑलरेडी 12-13 लाख रुपए मैं इंटरेस्ट भर चुकी थी। सो दैट वाज द सिचुएशन। आई हैड टू थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग इवन अ 10 रुपीज़ का नोट। मुझे बहुत सोचना पड़ता था। दैट वाज द सिचुएशन जब मुझे मेरे एक्टिवा में पेट्रोल डालने के लिए सोचना पड़ता था। दैट वाज द टाइम व्हेन इफ़ आई गेट सम मेडिकल इमरजेंसी, मुझे अगर खर्च करने पड़ते थे तो मुझे किसी से लेना पड़ता था। इट वॉज जस्ट गोइंग नो वेयर, मतलब सिचुएशन ठीक होने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं जितना डट के खड़ी होती थी ना, उससे बड़ा कुछ आके मुझे फिर से गिरा देता था। एंड आई वॉज लिटरली, मुझे लगता था कि दिस इज़ द एंड, नाउ आई जस्ट डू समथिंग, आई जस्ट एंड माई लाइफ, बिकॉज 22-25 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? व्हाट आई डू? हाउ आई एम गोना मैनेज? इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब सोच के भी मुझे लगता था कि नहीं, हो ही नहीं सकता, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, मैं नहीं कर सकती। और आफ्टर दैट 2018 का फरवरी आ गया, ओके, और मेरी शॉप को 3 साल होने वाले थे। इट वॉज लाइक फरवरी का महीना, और मैं ऐसी सिचुएशन चल रही थी, मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं रात भर सोच रही थी कि व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। कहीं इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ था, आई लिटरली ट्राई टू एंड माई लाइफ। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जब एक्टिवा में जा रही होती थी तो मुझे लगता था मैं किसी गाड़ी के सामने आ जाऊँ, मुझे लगता था कि मैं कोई ब्रिज से कूद जाऊँ। फिर मुझे डर भी लगता था क्योंकि आई हैड अ डॉटर। वो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी थी और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। मैं जब भी सोचती थी कि मुझे क्यों ज़िंदा रहना है, तो बिकॉज ऑफ हर। मैं क्यों नहीं मर सकती, मैं क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। सो मुझे क्यों इस सिचुएशन से बाहर आना है, तो बिकॉज ऑफ हर। सो डेफिनेटली शी वॉज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड बिगेस्ट वीकनेस। सो आई डिसाइडेड टू फाइट, एंड उस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट इट वॉज फेबररी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं इस सिचुएशन से निकलूँ कैसे बाहर, क्या ऐसा करूँ कि सब ठीक हो जाए। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट गॉट अप, मैं उठ के बैठ गई और मैंने एक पेपर पेन लिया एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स। और उन सारी प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, दैट वाज दिस बुटीक, ओके, दैट आई। अगर एक चीज़ आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, दैट इज़ नॉट फॉर यू। पहली बार सेल डाउन हुआ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब ये बुटीक बंद करने वाली प्रॉब्लम हुई, इतने सारे बैक टू बैक जब प्रॉब्लम हो रहे थे ना, तो मैं समझ गई थी कि दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी, और मे बी बिकॉज ऑफ दिस आई माइट गेट इन टू सम सीरियस प्रॉब्लम इन फ्यूचर। दिस इज काइंड ऑफ इंडिकेशन कि आई शुड स्टॉप इट, मुझे नहीं करना चाहिए। और या दैट इज़ हाउ आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं इस बुटीक को बंद कर दूँगी। और जब मैंने ऐसा सोचा, आई लिटरली मेड माई माइंड कि मैं इसे बंद कर दूँगी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, आई जस्ट हैड अ डिस्कशन विथ माई मॉम। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बुटीक को बंद करना है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द नोटिस पीरियड, ये 1 महीने का, और
I'm gonna shut down it for like permanently. Everyone was like, what, you can't do this, मतलब इतने पैसे लगे हैं, इतना टाइम लगा है, इतना एफर्ट लगा है, you can't do this, हम इसको चलाएंगे. एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं चलाना. वो जो एक मेरा डिसीजन था ना, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन आई टुक. और मैं उस पर अड़ी रही. मेरे घर वाले नाराज़ हो गए, मेरे डैड वो नाराज़ हो गए, मेरी मॉम नाराज़ हो गई, मेरे पूरी फैमिली दे वर लाइक तुम यू आर अ फेलियर, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमको बस यही है, कुछ भी शुरू करो, कुछ भी बंद कर दो, कुछ में तुम्हारा मन नहीं लगता है, यू जस्ट यू नो, जितनी बुरी बातें हो सकती थी उन्होंने मुझे बोल दिया, जितना डिमोटिवेट करना था कर दिया उन्होंने. बट आई वॉज श्योर कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये जो मैंने शुरू किया था ना, दैट टाइम आई वॉज नॉट, आई जस्ट डिडंट वांट टू ओपन इट दैट टाइम. और मैंने किसी और के यू नो डिसीजन से काम किया था, तो मुझे पता था, इसलिए दैट इज़ वाई जब भी मैं अपने इंट्यूशंस को नहीं सुनती, जब भी मैं अपने यू नो मेरा जो दिल बोल रहा है ना, मैं उसको नहीं मानती, तो मैं ऐसे ही प्रॉब्लम में पड़ती हूँ. एंड दिस टाइम माई माइंड, माई हार्ट, माई सोल, एवरीथिंग वॉज टेलिंग मी टू शट इट डाउन, बंद कर दो. सो इतना सब होने के बाद भी मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, मेरे ऊपर एक टैग लग गया दैट आई एम अ फेलियर. एवरीथिंग हैपेंड. मैंने शॉप को मैंने नोटिस दे दिया एंड विद इन अ मंथ मैंने उसको बंद कर दिया. और जब मैंने बंद कर दिया तो आई ट्राई टू, मैं जितना यू नो उस एक महीने में, उस नोटिस पीरियड में मैं जितना सेल कर सकती थी, सो आई जस्ट पुट अ सेल, जहाँ पे यू नो फ्लैट 50% ऑफ करके मैंने सेल लगाया. सो उससे बहुत कुछ पैसे रिकवर मैंने कर लिए. एंड ऑल्सो आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट फ्यू रिटेल शॉप, तो उन्होंने भी बहुत सारा स्टॉक ले लिया. सो विद दैट आई मैनेज टू क्लियर 8 लाख रुपीज़. और मेरे ऊपर अब भी कुछ 14-15 lakhs का डेट्स था. सो विच इज़ ह्यूज, ओके, विच इज़ ह्यूज. you know that time I had no job. So without any job, if you have to give like 14-15 lakhs rupees, फिर उसके monthly interest, मेरे पास कोई जॉब नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं. आई रियली हैड नो आइडिया कि मैं क्या करने वाली हूँ. बट मैंने बस ऐसे सोच लिया ना कि जैसे जैसे मेरा जो बोलते हैं ना इनर नोइंग, इनर फीलिंग मुझे जैसे जैसे गाइड करेगी, आई डू दैट. वर्स्ट क्या होगा, इफ़ नथिंग इज़ हैपनिंग, आई जस्ट एंड माई लाइफ. मेरे दिमाग में यही था कि इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, अगर कुछ इससे एक्सट्रीम होता है, द मोमेंट आई विल गिव अप, that will be the moment I'll give up on everything, even on my life as well. So जब आप एक्सट्रीम सोच लेते हो ना, जब बिल्कुल आप एज पे होते हो ना, तो आपका वो डर खत्म हो जाता है. एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड विद मी, कि मुझे लगता था कि इससे बुरा क्या होगा, जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे. Okay, so I decided to find a job first. So in 2018 सब कुछ ख़त्म करने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया ना, वो है एक जॉब ढूंढना. तो मैंने बहुत बहुत मेहनत करी जॉब ढूंढने के लिए. कहीं पे यू नो क्योंकि मेरा ऑलरेडी गैप हो गया था, तो मुझे कहीं पे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था, अच्छी पैकेज नहीं मिल रही थी. और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे 27,000 मुझे हर महीने इंटरेस्ट पे करना है. तो अगर मैं 40-50 का जॉब नहीं ढूंढती हूँ, तो आई वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव. लाइक बेसिक जो बेयर मिनिमम है उतना तो मुझे करना ही था. सो आई स्टार्टेड टू फाइंड अ जॉब, और मुझे कहीं भी नहीं मिली, मतलब इस पैकेज में मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली. सो बहुत ही थक हार के मैंने 22,000 में जॉब ज्वाइन करी. 22,000 आई वॉज गेटिंग दैट टाइम, और मुझे 27,000 पे करना होता था इंटरेस्ट वगैरह. So what I started doing, I started writing content for some websites, and I also started doing some part-time job documentation का. And I also started doing जो भी random काम आता था ना मेरे पास, मैं वो कर लेती थी. And literally I was working for 18 to 19 hours per day. और इतना करने के बाद भी ना, I was not able to earn enough money. It was just like कभी 40 हो जाते थे, कभी 35 होते थे. एंड आई वॉज जस्ट यू नो एबल टू मैनेज. मतलब मेरे पास कुछ बचता नहीं था, हर महीने कुछ ना कुछ तो शॉर्टेज रहती ही थी.
बट ये होता था कि जो लोग थे जिनको मुझे पैसे देने होते थे ना, इंटरेस्ट जिनको पे करना होता था, मैं उनको दे देती थी, बिकॉज दे वर द पीपल जो कि हमेशा आपको उल्टा सीधा बोलते थे, एंड इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी. इट वॉज इट वॉज जस्ट इट वॉज हिटिंग मी रियली हार्ड. ठीक है, आज तक लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने कभी किसी से कोई उधार लिया हो या मुझे कभी किसी ने कुछ बोला था तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत चोट लगती थी. और आई वॉज इन सच सिचुएशन कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी. आई वॉज हेल्पलेस, आई वॉज टोटली हेल्पलेस. तो मुझे सुनना पड़ता था. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब ना, तो सबसे पहला काम मैं करती थी कि मैं जिनको जिनको मुझे पे करना इंटरेस्ट मैं उनको देती थी. नेक्स्ट जो मेरी प्रायोरिटी थी दैट वाज माय डॉटर, तो मैं उसके जो भी स्टडीज़ वगैरह के खर्चे वो करती थी. एंड लास्ट जो प्रायोरिटी थी वो मैं खुद. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज लाइक कि मैं बीमार होती थी एंड आई नेवर यूज टू टेक मेडिसिन. मुझे कुछ तकलीफ होती थी तो मैं कभी भी अपने बारे में मौका ही नहीं मिलता था सोचने के लिए. सो दैट इज़ हाउ 2018 वेंट. एंड देन केम 2019. 2018 बिल्कुल वैसे ही गया. मतलब इट वॉज लाइक सो मच ऑफ हार्ड वर्क, लाइक सो मच ऑफ हार्ड वर्क, आई कांट इवन टेल यू. और इस सबका जो बोलते हैं ना साइड इफेक्ट, इस सबके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ना, वो मुझे 2019 में देखने के लिए मिले. थोड़ी सी लड़खड़ा रही हूँ, आई थिंक मुझे चढ़ गई है. सो या, तो इट वॉज 2019. और क्योंकि ऑल दिस वाइल आई ऑलवेज नेग्लेक्टेड माई हेल्थ. ओके, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी प्रायोरिटी में कि मैं अपने आप को तो मैंने बिल्कुल एकदम बैक सीट पे रख दिया था कि जो होता है वो आई वॉज हेल्पलेस. एक्चुअली इट वॉज नॉट दैट आई वॉज डूइंग इट इंटेंशनली, बट आई वॉज इन सच सिचुएशन कि मैं अपने बारे में सोच ही नहीं सकती थी. एंड इन 2019 around February, I was diagnosed with an autoimmune disease, which was rheumatoid arthritis, and it was so worst कि मैं I was in so much pain कि मैं सुबह उठती थी तो I used to be in pain. मुझे उठ के I couldn't even hold this glass like this. मेरे पूरे joints में इतनी ज़्यादा पेन होता था. तो that phase started, and so that story I'll tell in some other video, because I'm just planning to share my rheumatoid arthritis journey, how I recover, how I heal, and how I'm doing now. So that I'll share in some other video. तो I was diagnosed with that, and in 2019 मेरी health condition इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि because of that rheumatoid arthritis का medicine I got some liver infection. और I was literally in such condition कि डॉक्टर्स ने बोला था there are like 50% chances. Okay, मेरी immunity was like zero. I had got jaundice, liver infection था, और उसके अलावा I was mentally so depressed कि I had no, इट वॉज लाइक कि चलो मैं बीमार हूँ, अगर अभी मुझे कुछ हो जाता है तो इट्स ऑल गुड यार, ठीक है, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है. आई डोंट वांट टू listen to anyone. I don't have to say anything to anyone. And yeah, that is how my situation was getting worse. क्योंकि जब आप खुद ही रिकवर नहीं होना चाहते हो तो फिर मेडिसिन क्या काम करेगा. Nothing was working. I was really in a bad state. एक चीज़ अच्छी थी कि I had health insurance, तो मुझे उस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि मेरे जो ट्रीटमेंट में पैसे खर्च हो रहे हैं वो कौन देगा, कहीं उसके लिए मुझे फिर से उधार ना लेना पड़े. सो दैट वाज समथिंग, मुझे उसके लिए टेंशन नहीं थी. सो या, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 months एंड आई वाज गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट. इट वाज रियली अ रफ फेज ऑफ माई लाइफ. उस दौरान मैंने सही में जाना कि कौन आपके सच्चे दोस्त हैं, कौन सिर्फ आपके पास किसी मतलब से है. और एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि मेरी लाइफ में जो भी थे दे ऑल वेर जस्ट फॉर द नेम सेक. ओके, आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. ठीक है, अगर आप मेरे सामने आते हो कुछ भी प्रॉब्लम लेके, तो आई वोंट थिंक कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं. आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट. ओके, मे बी नॉट फाइनेंशियली, बट अगर कहीं पे मेरी जाके अगर ज़रूरत है, मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए, आई डू दैट.
इमोशनली सपोर्ट करने की अगर ज़रूरत है, आई डू दैट. सो या आई वॉज जस्ट, जो लोग थे मेरी लाइफ में ना, वो इसी मतलब से थे. ओके, आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो आज मैं उनसे बात कर लूँगी. आज मैं बहुत ओके, वहाँ पे जाना है, ये काम करना है, आई एम नॉट एबल टू डू, सो आई जस्ट टेल हर, शी विल मैनेज. एंड उस दौरान व्हेन आई आस्क्ड फॉर हेल्प, नो वन केम. एंड आई जस्ट realized कि these, I don't need these fucking people in my life. I just need to throw them out. And that was a year when I cut off most number of people from my life. Like literally, I had no friends. I had blocked many people. I had stopped, talking to people. It was a time where I was going through a lot of physical pain. I'll just put a picture, you will see. So I was going through a lot of physical pain, and also emotionally I was going through a lot. I was alone. I was not able to share what I'm going through with anyone. There was a time when I just used to feel कि I just want to end my life. I just don't want to survive. I just don't want to. सो 2019 के नवंबर तक ये सब चला. आई वॉज डायग्नोज विद रिमाटोड आर्थराइटिस इन फेबररी, और फेबररी से लेके नवंबर तक मेरी यही कंडीशन थी. मैं बीमार पड़ती थी, किसी को मैं प्रॉपरली चेकअप नहीं करवा पाती थी, और ऐसे करके जब मैं अगस्त सितंबर तक आई ना, तो आई वॉज लिटरली डाइंग. ओके, और उस सिचुएशन में when I recovered, जब मैं hospitalized हुई 2 months के लिए, then I recovered. The first thing that was in my mind, now what I need to do, what I'm gonna do now. Let me breathe. Okay, so there's my daughter. You wanna come? Okay, she's very comfortable. I'm taking wine, she's taking cold drinks, and that's how we mother-daughter enjoy. Came back from hospital, so that was the first thing in my mind कि now what I'm gonna do. फिर से जॉब ढूंढूं, वही सड़ी हुई सी जॉब मिलेगी 20-22 हज़ार की, 25 हज़ार की, उसमें मैं क्या कर लूँगी. आई एम फिनिश्ड. आई लिटरली हैव नथिंग इन माई हैंड. और वो जो फीलिंग थी ना, अभी आई फील कि जो भी चीज़ें होती है वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है, आपको कोई लेसन देने के लिए होती है. वो मैं अब समझ रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज, आई हैव कम आउट ऑफ दैट फेज. और अब मुझे पता है कि हर चीज़ का रास्ता पहले से बना हुआ रहता है. इट इज़ जस्ट दैट कि वो जो फॉग होता है ना, तो आप नहीं देख पाते हो आगे का रास्ता, और आप तभी देख पाओगे जब आप उस पर चलते रहोगे. अगर आप वहाँ पे रुक जाओगे, व्हेन यू हैव नो क्लैरिटी, और आप रुक गए कि आगे तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, मैं आगे कहाँ जाऊँ, तो आप वहीं पे स्टक होके रह जाओगे. यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग. यू जस्ट हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ to go ahead. Okay, and that is what I was doing. I really don't know कि there was this time कि कभी मैं एकदम से emotionally down होती थी, and I used to think कि भाड़ में गए सब, I'm just gonna end my life. That is the only way. मुझे और कुछ सोचना नहीं है, मुझे और कुछ करना नहीं है. I am tired. I just don't want to do anything. And then next moment I was like, it is just a phase. ये ठीक हो जाएगा. मेरा जो बोलते हैं ना, अंदर से मुझे ये फील हो रहा है कि ये सब ठीक हो जाएगा. आई कम आउट ऑफ दिस. सो आई वॉज लाइक वो दोनों सिचुएशंस ऑन एंड ऑफ होती रहती थी, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू दैट. और ऐसे ही कर करके मैं अपने आप को जस्ट मोटिवेट कर रही थी कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. एंड माई डॉटर, शी वॉज ऑल्सो very strong support. Like there was a time when I used to cry like anything, and she will always tell me ki mom, everything will be all right, don't worry, everything will be all right. And that just one line that used to give me so much of strength. और मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, because my mom dad, they are like, they used to get very tense, and they just used to cry. So I just didn't want to, I just couldn't see them crying. So that is why I'm like, that is why I never used to share anything with them. Okay, so I just got a job in 2019. Like the previous company where I was working, they were just starting a new company. So I had once told my boss that I really need a job, and that time they were not doing anything. So
I couldn't get any, you know, job from them. But luckily that was the time in 2019, and like in December they were starting this new business and they asked me to join them. I went there. The package was very low though, but I still joined because I knew that um, in this company I'm going to get the growth, because the boss, he is very nice. I really, he's like a god to me. So he helped me when I was on the verge of breaking down. So that time I just joined them and I started working with them. It was really fun because the environment of that, the workplace was really friendly and I used to enjoy a lot. मैं उस टाइम में सब कुछ भूल जाती थी. I used to forget everything, like everything. मैं क्या टेंशन में हूँ, क्या स्ट्रेस है मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है, मैं वो टाइम बहुत एंजॉय करती थी. एंड आफ्टर कमिंग बैक अगेन आई यूज टू वर्क लाइक पार्ट टाइम. जो भी मुझे काम मिलता था छोटा मोटा मैं कर लेती थी, बिकॉज सिचुएशन वॉज सेम. आई हैड टू पे लाइक 27,000 इंटरेस्ट एंड देन, तो या समहाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज. और उसके बाद से लाइफ बदलनी शुरू हो गई क्योंकि आई गॉट माई प्रमोशन because the work was going really well. I started working on my channel, YouTube channel. वहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ collaborations मिल जाते थे and I was still doing the content writing work. I developed this interest in tarot reading क्योंकि जिस फेज से मैं गुजरी थी ना, so I was like a Nastic person, you can say. I was an atheist. I never used to believe in such things. ये जो फेज था मेरी लाइफ का, उसने मुझे बहुत हद तक बिलीव करवाना सिखा दिया कि देयर इज़ अ गॉड, देयर इज़ समवन जो कि ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. ओके, अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, तो ही माइट पुट यू इन सम सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए, जस्ट टू मेक यू रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि आप क्या कर सकते हो, और जस्ट टू पुश यू. अगर आपको वो धक्का नहीं लगेगा, आप नहीं गिरोगे, आप कभी अपने जो पंख है ना आप नहीं खोलोगे. सो yeah, he'll just do all these things, but at the same time he'll take care of everything. और इस सिचुएशन से मैंने ये सीखा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. Stress is not going to help you in any way. So you just have to keep calm and you just have to keep working. You just have to keep moving. That is the only solution. So yeah, I got promotion. I was working part time. I was doing my tarot readings, and by God's grace my tarot reading was doing really well. I still अभी ऐसा है कि मेरे पास रीडिंग्स बहुत आते हैं बट मेरे पास टाइम नहीं होता उन्हें करने के लिए, बिकॉज माई जॉब इज़, I have a full-time job which is paying me really well. I work for my YouTube channel because that gives me a lot of happiness. I really don't care how many people are watching my video. I really don't care how many views I get, how much I'm earning, but YouTube is something that is giving me inner happiness. I just love making videos. I just love sharing my experience with product or any incident or anything, like anything in general. Like, so YouTube is like my outlet to express my emotions. And tarot, I don't know, I just, when I discovered tarot, I suddenly get a click that this is my sole purpose. I have to do this. Okay, I have to do this, and it is going really really great. So yeah, I did that. I also completed my nutrition course because I was into fitness and I love to learn new things. So I had done this nutrition course, and I also used to coach people for weight loss. That was the situation, and I really want to say कि ये जो भी कुछ हुआ इसके बाद भी और भी बहुत सारी story है how I overcome. Like, if you ask me now, I have cleared my 75% debts. I have cleared. There are still 25% to pay, and I'm really working hard to clear all those debts so that one day the day I'll clear everything, I'm just going to have a very peaceful sleep. So I'm working towards it, and I really अभी like at this point of time when I look back, मुझे लगता है कि वो जो भी situations हुई थी ना, वो जो भी मैं जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, it was really important part of my life, because उसकी वजह से I never knew that I can handle so much of stress. I can handle and come out of this kind of
situation and I will build myself again. Sometimes I feel really proud, like, girl, you have done it. And sometimes I feel so sad about me that I had to go through all this. Sometimes I just feel nothing. It's all life, you know. We fall, we get up, we start running, we learn to fly, and that is how life goes on. And that is what I have learned through all this situation. And now I'm really at a better place. I'm earning good, I'm living a good life. और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आई रियली फील प्राउड कि इस पूरी जर्नी में अगर किसी एक चीज़ ने मेरा साथ दिया, दैट वॉज माई हार्ड वर्क. That was literally my hard work. I don't feel ashamed of sharing this, that I even got a situation where there were some, shitty people, those who will just ask me for, like, they'll give me money for, I hope you understand. So that was the situation I have gone through, and I'm really proud of myself that even after going through such situation, I'm still standing strong with my dignity. And I all I did was hard work, hard work, hard work, hard work. And just I had this faith on myself. I just had this faith on someone who is there. So that just kept me moving. 2021 was really good. 2021 was basically a time when I did a lot of self realization. I learned a lot about myself. One thing I have become pro at is setting goals and, crushing them. I don't know what I'm saying, but I just wanted to share this. There are times when I feel really sorry for myself. I know I don't have friends now. I don't have anyone with whom, like, I can talk or share something. But now I feel I don't need anyone. क्योंकि जब आप ये समझ जाते हो ना that you are enough and no one is going to help you. अगर आपकी कोई help कर सकता ना तो वो आप खुद हैं. No one else can help you. No one else can motivate you. अगर आप motivation के लिए किसी को देख रहे हैं, please don't do that. मत देखिए. अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता. अगर आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो तो आपको कोई नहीं समझ सकता. आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता. टेक माई वर्ड्स, आप लिख के ले लो. सो yes, it feels great. It really feels great to come out of that situation, and I feel much lighter after sharing this. आई रियली वॉन्ट टू पुट इट देयर कि अगर आप में से कोई भी ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, तो आप लिख के ले लो. यू विल कम आउट ऑफ दिस. मे बी इट विल टेक सम टाइम. उस टाइम पे जब मैं उस सिचुएशन में थी, तब अगर कोई मुझसे कहता कि 3-4 साल बाद ये ठीक हो जाएगा, तो आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड. बिकॉज 3-4 साल, it's so long. But लिटरली आई हैव कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. मैंने उतने साल उस पेन में, उस तकलीफ में मैंने बिताए हैं. और अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे आई फील लाइक इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट वॉज अ लेसन. बहुत कुछ सीखा है मैंने, एंड दिस लेसन इज गोइंग टू हेल्प मी इन माई फ्यूचर. सो या that's it. And my camera's battery is also going to die at just 5%. So I'll just end this video. And there are so many stories, there are so many phases of my life which I want to share. Maybe kabhi kabhi baith ke यूं ही with this glass of wine. I really don't know if you want to like this video, unlike this video, put any good comment or any bad comment or any hate comment. I really don't care, because I'm not in that space anymore. जब कि किसी की बातें मुझे हर्ट करे, किसी का एक्शन मुझे हर्ट करे, no, it's not going to happen. Understand that everything is happening with you is just to give you a lesson. Learn that lesson and move on. That's all I wanted to say, and wish you all a very, very, very happy new year 2022. And with that, I'm just gonna end this video.